Yes, children, we are going to do the analysis of the transaction. As I have told you, the earlier approach which we followed, that was traditional approach. What we did actually at the time, एक transaction मिली and then we analyze it. Analyze means which accounts are being involved there, what is the rule which is being followed, which account to be debited, which is to be credited. So all these we have. So all the type of accounts we analyze in an analytical table. So the same thing we are going to do now. Question number 6 from your back exercise you can open. First of all, I'll make the table for analysis and then we will start the question. Okay. So first column I will need to write transaction. Whatever is the transaction which will be given in the question itself. Okay? And then two major things. What are the accounts involved? कौन से accounts involved है इसमें? Then what are the types of accounts? Then debit में amount, credit में amount, and then rule or reason. In this way, we are going to do analysis of transaction. Analysis of transaction, beta, we are going to do. Question number 6, I am repeating. From your book, you can open page number 6.17. Question number 6 is there. This question we have already done in by traditional approach. Now the same question we are going to do with modern approach. First of all, the first transaction which is given, it is Manu started business with cash 1 lakh rupees. तो यहाँ transaction में मैं shortcut में लिख देती हूँ. Manu started business with cash. ये तो question में given ही है. Now which two accounts will be involved? If someone will start the business, bring in cash to the business, which two accounts will be there? One cash account will be there, the other capital account will be there. If cash में आ जाएगा capital बन जाएगी. Now what is this type of account? Cash is an asset, so it will go to asset account. Capital is capital itself, type of account में capital कौन पड़ेगा? कैपिटल अकाउंट. डेबिट कौन सा अकाउंट डेबिट होने वाला? कैश का. तो आई विल राइट इट 1 लाख रुपीस से डेबिट हुआ, क्रेडिट नहीं हुआ. कैश डेबिट क्यों हुआ? व्हाट इज द रूल फॉर डेबिटिंग कैश अकाउंट? रूल और रीजन. एनीथिंग यू कैन राइट व्हाई दिस अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड. बिकॉज़ हमारा रूल कहता है एसेट अकाउंट का debit increase in asset, cash is increasing, so I will debit it. So यहाँ रूल में मैं लिखूंगी debit increase in asset. ठीक है जी. कैपिटल को मैं क्रेडिट कर रही हूँ 1 लाख रुपीस से. Now why I am crediting capital account? क्योंकि कैपिटल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट में. कैपिटल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट इंक्रीज इन कैपिटल. अगर हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है तो हमने इसको क्रेडिट करना है. तो रूल आई विल राइट क्रेडिट इंक्रीज इन कैपिटल. ठीक है जी. विद दिस वन ट्रांजैक्शन इज ओवर. This is how we are supposed to do this analysis of transaction. Like which two accounts are there, what are that type of account which will be debited and credited and why. ठीक है. Entry number 2, he purchased furniture for business 20,000. Purchased furniture. So which two accounts will be there? एक तो furniture account is there, दूसरा कैश पे किया होगा कैश अकाउंट इज देयर.
Furniture, what type of account is furniture? Furniture is a asset account. Cash is also an asset account. Debit क्या होगा? Asset जो increase हुआ वो debit होगा 20,000. जो decrease हुआ वो credit होगा. Because our rule says debit increase in asset and credit decrease in asset. I hope it is visible to you and you are able to understand what is being taught. Children are still joining. Already 9 minutes are over. Jayashri, Jaspreet, Saurav and Sifatpreet. They have joined just now. But why are you joining late? Every day I used to say the same thing. Third one, he purchased goods on credit from Anshul 6,000. Anshul से goods खरीदे. Goods on credit. Purchase में short term. Goods खरीदे तो what we will write? We will write purchases account. कैश तो गया नहीं, हमने कहां से खरीदी है? अंशुल से, तो अंशुल लगाओ. परचेज अकाउंट हमारे लिए क्या खर्चा? It is an expense, so we will write expense account. Anshul account is an liability account. Liability create हो गई हमारी. Sorry. तो क्या type of account में liability? Name of the account is Anshul. डेबिट हो जाएगा परचेज 6,000, क्रेडिट हो जाएगा अंशुल 6,000. Now what is the rule for expense account में डेबिट का रूल क्या है? डेबिट increase in expense and credit increase in liability. ठीक है बेटे, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? करना आपने यही है. देखो ये जो नेम ऑफ द अकाउंट्स है ये सेम है. ट्रेडिशनल अप्रोच में भी यही थे, इसमें भी यही है. डिफरेंस इज द टाइप ऑफ अकाउंट इज चेंज बिकॉज वी आर फॉलोइंग द मॉडर्न अप्रोच नाउ. अभी मैं बाकी के बोल देती हूँ. दिस वाज योर होमवर्क, यू मस्ट हैव डन इट. तो प्लीज चेक इट आउट इफ यू हैव डन इट करेक्टली और नॉट. हरमीन वांट टू आस्क समथिंग. हरमीन, बेटा स्विच ऑन योर वीडियो. यस मैम, जो आपने ये गुड्स ऑन क्रेडिट वाला करवाया है, इसमें परचेज की जगह ऐसे नहीं आ सकता कि वो हमारे पास स्टॉक आया है, गुड्स हमने बाय किए हैं तो वो हमारे पास एक एसेट है, ऐसे नहीं हो सकता? एसेट इंक्रीज हुआ है. बट लिसन, व्हाट हैपेंड, स्टॉक वर्ड हम यूज कब करते हैं? बेसिकली जो गुड्स हमने परचेज किए ना उन्हीं को हम स्टॉक बोलते हैं. बट जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो हम उसको उस वक्त भी स्टॉक नहीं बोलते. स्टॉक हम उसको कब बोलते हैं? सी, गुड्स हमने खरीदे क्यों? सो दैट वी कैन मैन्युफैक्चर समथिंग एंड देन सेल इट टू समवन एल्स. ठीक है, तो राइट नाउ परचेज इज अ टाइप ऑफ रॉ मटेरियल इज देयर व्हिच वी हैव परचेज्ड. इट इज अनयूज्ड like प्रोडक्टिव गुड्स जिनके ऊपर अभी कोई प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं हुई है. तो वी डोंट कॉल इट स्टॉक. स्टॉक इज बेसिकली व्हाट इज स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर. जैसे फॉर एग्जांपल हमने ड्यूरिंग द ईयर बड़ा कुछ परचेज किया, रॉ मटेरियल खरीदा, कभी हमने एक्स्ट्रा टूल्स एंड इक्विपमेंट, सो मेनी थिंग्स वी आर परचेजिंग. सारा ईयर प्रोडक्शन प्रोसेस चलती रही. एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन वी आर सपोज्ड टू मेक द बैलेंस शीट, उस टाइम पे हम मेजर करते हैं कि आज की डेट में हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा है, फिनिश गुड्स कितने हैं, रॉ मटेरियल कितना है, वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, उसको हम मेजर करके, बिकॉज देयर वी नीड टू मेक अ बैलेंस शीट, हमने लिखना है कि हमारे पास कितना पड़ा है, देयर वी कॉल इट स्टॉक.
and then it will be included in cash, asset itself. But when we are purchasing it at that time, it is a part of cost of production. Cost of production का part है ना, हमने रॉ मटेरियल खरीदा, प्रोडक्शन करी, फिर उसको बेचा, तो ड्यूरिंग द ईयर तो वो हमारे पास एसेट, वो हमारे पास रहने वाला थोड़ी, it is not going to stay with us, it is going to come, get converted into something and going out, so it is not our asset. Got it? But at the time when we are closing the books of accounts, at that time we have something left with us, the leftover material we calculated, called it as a stock, and then we will write it under assets, even though we know that next year that asset is also going out, अगले year तो वो भी बन के बिकी जाने, ठीक है? तो right now for the time being when we are transacting, we will write it as expense and purchase because it is a part of cost of production. प्रोडक्शन की कॉस्ट के अंदर आता है, जैसे लेबर की कॉस्ट, जैसे बिजली की कॉस्ट, जैसे और इक्विपमेंट्स की कॉस्ट, वैसे ही रॉ मटेरियल की कॉस्ट, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है जी? यस मैम, थैंक यू. अदरवाइज अगर तुम जैसा बोल रही हो वैसा हम सोचें, स्टॉक तो पहली बात हम लिखते तभी है जब एट द एंड ऑफ द ईयर होता है. अगर हम इसको एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि परचेजेस वी आर मेकिंग एंड समथिंग इज कमिंग टू अस, रियल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, then also purchase account will be debited. ठीक है? But rule हमें सही follow करना चाहिए. It is expense. Earlier also we did it like nominal account, debit all expenses and losses. Okay, तो आगे मैं read कर रही हूँ, आप इनको बताना, चेक कर लीजिए, अगर गलत है तो बताना. Paid to his creditor अंशुल, अंशुल को पैसा पे किया, तो हमारी एंट्री आ जाएगी, अंशुल डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा. Liability account and asset account. Amount of लिख लेना मैं से. रूल आ जाएगा डेबिट, decrease in liability component and credit, decrease in asset component. ठीक है जी? एसेट भी कम हो रहा है, लाइबिलिटी भी कम हो रही है इन दी ट्रांजैक्शन नंबर 4. ट्रांजैक्शन नंबर 5, सैलरी पे की क्लर्क को एंट्री आ जाएगी, सैलरी टू कैश. सैलरी टू कैश में रूल क्या लगेगा हमारा? रूल विल बी सैलरी इज एन एक्सपेंस एंड कैश इज एन एसेट. एसेट कम हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, राइट? डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंस, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट. ठीक है जी? एसेट कम हो गया, एक्सपेंस बढ़ गया. इसके बाद नेक्स्ट हमारी एंट्री है पेड रेंट. सेम एंट्री, एग्जैक्टली सेम, यहाँ पे रेंट आ जाएगा, रूल भी सेम और टाइप ऑफ अकाउंट भी सेम. सैलरी की जगह रेंट आ जाएगा, रेंट टू कैश, पहले सैलरी टू कैश. रिसीव्ड रेंट, रिसीव करेंगे तो एंट्री कैश डेबिट आ रहा है, कहां से आ रहा है? क्या रिसीव किया? इंटरेस्ट. तो यहाँ रूल आ जाएगा एसेट और इनकम. ठीक है जी? एसेट और इनकम. रूल एसेट बढ़ रहा है, increase in asset and credit, increase in income. Income is also increase in, बढ़ रही है income. तो increase decrease सोच के आपने क्वेश्चन कर लेना है. रहने बेटी, please note it down if you have not, and then we will start. Today the topic of classification of accounts and rules for debit and credit is already over. Okay, from this question, from this chapter, we have one more type of question which can be there for 3 marks in your exam. ये जो हमने analysis वाला question किया ना बेटे, generally 4 marks में आता है. आपको 4 transactions दी होंगी, you will be asked to analyze in the same manner as I have done just now. And the second question which can come from this chapter, like for numerical theory question तो आएगा ही आएगा, types of account बताओ, rules बताओ.
The numerical question which can be there, it is how to prepare an account. Basically यहाँ पे इन्होंने लिखा open a T-shape account. What is a T-shape account? See, I believe this is it looks like a T to you. So whenever an account is being prepared in the shape of a T, T means this is an account which is being classified or divided in two segments. This left segment is called as debit side, and this right part is called as credit side. Okay, so this is an account जिसकी दो sides हैं, left hand side and right hand side. Right hand side को credit side बोलते हैं, left hand side को debit side बोलते हैं. And this format of account is called as T-shape account. Basically, T-shape account is being taught to the children to tell the basics of how you are supposed to put entries here. Rules आपने पढ़ लिए, डेबिट क्रेडिट, किसको डेबिट में डालना, क्रेडिट में डालना, उसका बेसिक थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए ये सिखाया जाता है. But I don't prefer teaching this T-shape account because later on it is of no use. So what we do right now, we are going to do, we will not prepare a T-shape account as in this manner, but we will prepare a full-fledged account for the same question, which will be there in your upcoming syllabus also and lifetime also. This is just like ऐसे होता है ना कि हम पहले बच्चे को आधा ए बनाना सिखाते हैं, फिर पूरा ए सिखाते हैं, तो हम डायरेक्टली पूरा ए सीखेंगे because that will be of some use, right? So question number 7 from your book, page number 6.17. Question says open a T-shape account for machinery. तो किसका अकाउंट मुझे बनाना है? मशीनरी का. I will write here as the heading machinery account. ठीक है बेटे जी, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, हेडिंग पे लिख दिया नेम मशीनरी का. अब मुझे अमाउंट लिखने हैं इसके अंदर, तो डेफिनेटली आई नीड टू मेक सम अमाउंट कॉलम. अमाउंट के लिए कॉलम को बनाना ही पड़ेगा. ये लेफ्ट हैंड साइड का अमाउंट वाला कॉलम, ये राइट हैंड साइड का अमाउंट कॉलम. ठीक है जी. तो नाउ माय T-shape अकाउंट थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है, और दोनों साइड बीच वाली लाइन याद है ना आपको, उसमें थोड़ा लंबा कर दिया. दिस इज द डिवाइडिंग लाइन, और इस लाइन ने इन दोनों साइड्स को डिवाइड कर दिया. हियर द नेम ऑफ द अकाउंट विल बी देयर. मैं ऐसे लिख देती हूं पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट. बेसिकली यहाँ पे डेट का कॉलम भी होता है, बट बिकॉज इन दिस क्वेश्चन ओनली पार्शियल इंफॉर्मेशन इज गिवन, सो वी विल ओनली, दो ही चीजें दी है ना क्वेश्चन में, देखिए मशीनरी परचेज एंड देन अमाउंट, दो ही चीजें दी, तो हम दो ही कॉलम बना रहे हैं. लेफ्ट हैंड साइड पे दो कॉलम पर्टिकुलर अमाउंट, राइट हैंड साइड पे दो कॉलम पर्टिकुलर अमाउंट. ठीक है जी, इतनी सी बात सबको क्लियर है. वन मोर रूल विच आई एम गोइंग टू टीच यू राइट नाउ. whenever you will post entries in the account, इसको कहते हैं अकाउंट, और इसमें जब हम एंट्रीज लिखते हैं उसको कहते हैं पोस्ट करना. whenever you will post entries in the account, keep it in mind कि डेबिट साइड पे जब भी कुछ आएगा उसके आगे टू लिखा जाएगा. जब भी डेबिट साइड पे कुछ आएगा उसके आगे TO2 लिखते जाना. और क्रेडिट साइड पे अगर कुछ आएगा तो BY लाइक दिस यू विल बी राइटिंग. ठीक है बेटे, क्लियर है? अब इसका टू और बाय का पर्पस क्या है ये भी आपको आगे जाके पता चल जाएगा जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, बिकॉज वी हैव नॉट डन दैट क्वेश्चन, नॉट डन दैट चैप्टर, तो शायद आपको ये डिफिकल्ट लगे. फॉर द टाइम बिंग आप ऐसे समझ लीजिए यहाँ टू लिखना है या बाय लिखना, दिस इज अ रूल, दिस इज अ पार्ट ऑफ द फॉर्मेट, वी कैन चेंज इट. डन? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन हाउ टू पुट एंट्री. इधर किसको लिखूं और इधर किसको लिखूं? इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, रूल दिमाग में रखना है. व्हाट इज द रूल फॉर मशीनरी अकाउंट? व्हाट इज मशीनरी? व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज अ मशीनरी अकाउंट? एनीवन ऑफ यू कैन टेल, रेज योर हैंड हु नोज व्हाट इज द टाइप ऑफ मशीनरी अकाउंट. ओके, 2-3 children they know. Harman, you can answer. Harman. Ma'am, asset. Okay, so it is asset account. So please tell me, Harman,
that what is the rule for asset account? मैम याद नहीं है मेरे को। याद नहीं, अभी तो पढ़ा है बेटे, आप घर से रिवाइज नहीं करके आते। Why you are not doing your homework regularly? Yesterday I have taught you, today I ask you to revise it from home. Homework दिया, question you did मतलब नहीं किया तो no problem. At least revise तो करिए जो पढ़ाया जा रहा है आपको। Okay, Nandini Chopra wants to answer. Nandini, you can answer. Ma'am, in cash account, the debit increases and credit decreases. In the rule of asset account, debit increases and credit decreases. You are very right. दोनों टाइप से मैं बता देती हूँ। अगर हम मॉडर्न अप्रोच से करेंगे तो मशीनरी इज एन एसेट अकाउंट, और एसेट अकाउंट का रूल होता है, यहाँ लिख दूं, डेबिट increase in asset and credit decrease in asset. तो ये है मेरा रूल कि अगर कभी भी कोई एसेट इंक्रीज होगा तो मैंने उसको डेबिट करना है, अगर मेरा एसेट डिक्रीज होगा तो मैंने उसको क्रेडिट करना है। दिस इज द रूल फॉर एसेट अकाउंट। अगर मुझे ये फॉर्मूला पसंद नहीं है, मुझे ये मेथड पसंद नहीं है, I can go with the traditional approach also. Traditional approach का रूल कहता है, यहाँ लिख देते हैं नीचे, ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है कि मशीनरी इज अ रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट what comes in and credit what goes out. तो अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से क्वेश्चन करूं तो मेरा रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो जो भी आएगा मेरे पास वो यहां, अगर चला जाएगा गोज आउट तो यहां। इट मींस अगर मशीनरी आएगी तो डेबिट साइड, मशीनरी जाएगी तो क्रेडिट साइड, मतलब परचेज ऑफ मशीनरी यहां, सेल ऑफ मशीनरी यहां। क्लियर है बेटे? अगर मैं इस अप्रोच से करूं, इंक्रीज हुआ तो डेबिट, मशीनरी इंक्रीज कैसे होगी, परचेज करेंगे तो मशीनरी यहां, डिक्रीज हुई तो क्रेडिट करेंगे, मशीनरी इज गोइंग आउट तो यहां। एनी टाइप ऑफ रूल यू कैन फॉलो, द टेबल और दिस अकाउंट विल रिमेन सेम। दोनों में से कोई भी रूल लगाइए, मैंने 2 बॉक्सेस बना दिए, आपको जो पसंद है आप वो रूल लगाइए, ये आंसर इसका सेम आएगा। लेट्स डिस्कस इट फ्रॉम द क्वेश्चन। नंबर 1, मशीनरी इज परचेज्ड फॉर 40,000 rupees. Machinery purchase, machinery is coming in, debit what comes in, तो 40,000 rupees मेरा कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड पे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड पे आ जाएगा 40,000। अब मैं नाम किसका लिखूं, परचेज करी है हमने बेटे मशीनरी, व्हेन वी आर परचेजिंग मशीनरी तो whose name should be there। एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, जिसका अकाउंट है उसके अंदर उसका अपना नाम कभी नहीं आ सकता। मतलब मशीनरी अकाउंट के अंदर मशीनरी वर्ड यूज नहीं होगा कहीं भी। आई रिपीट, इनसाइड मशीनरी अकाउंट मशीनरी वर्ड विल नेवर बी यूज्ड, सो वी विल राइट द नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट। ठीक है? सो इफ वी हैव परचेज्ड मशीनरी, जर्नल एंट्री मुझे कोई बता सकता है? अभी हमने रूल्स पढ़े हैं, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन करा था। When we are purchasing machinery, something is coming in, something is going out. So now can you raise hand and tell me what will go out? Machinery is coming in, that we are clear. What is going out? Yes, Nandika. Cash is going out. Very good. Cash is going out, machinery is coming in. As simple as that. So what we will write here? Cash account. ठीक है जी? मशीनरी इज कमिंग इन, मशीनरी का रूल है डेबिट करो, कर दिया, लेकिन नाम मैंने किसका लिखना है, ऑपोजिट अकाउंट का लिखना है, बिकॉज कैश इज गोइंग आउट, सो इट विल बी रिटन लाइक दिस। अगर आपको भूल जाता है तो ब्रैकेट में आप अपनी रेफरेंस के लिए यहाँ परचेज लिख सकते हैं। इफ यू वांट टू राइट फॉर योर रेफरेंस, कि कल को भूल जाओ कि ये क्या लिखा है, क्यों लिखा है,
कैश तो कई जगह आएगा, तो यू मे नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट कि व्हाई कैश इज रिटन हियर, कैश यहाँ पे भी आ सकता है, बट ब्रैकेट में मैंने साथ में आपकी रेफरेंस के लिए लिख दिया परचेज। एंट्री नंबर 2, मशीनरी सोल्ड, मशीन चली गई, व्हेन मशीनरी इज गोइंग आउट समथिंग इज कमिंग इन, ऐसी एंट्री होती है ना, समथिंग इज गोइंग आउट समथिंग इज कमिंग इन। कैन एनीवन प्लीज टेल मी व्हाट इज द एंट्री फॉर मशीनरी सोल्ड? ओके, नंदिनी चोपड़ा। Nandini, you can unmute. Sorry, cash is coming in. cash is coming in. Very good. तो सेल ऑफ मशीनरी रूल कहता है क्रेडिट बट गोज आउट, मशीनरी इज गोइंग आउट फॉर 10,000 रुपीज, तो क्रेडिट साइड पे 10,000 रुपीज लिख दिए। नाम किसका लिखना है मुझे? ऑपोजिट पॉइंट, तो आई विल राइट कैश अकाउंट, क्योंकि जब मशीनरी जाती है तो कैश आता है। अभी मैंने तभी आपको बोला यहाँ भी कैश यहाँ भी कैश, आप कंफ्यूज हो गए what type of cash it is. So in bracket for your reference you will write sales, कि मशीनरी सेल हो गई है इसलिए यहाँ लिखी, या सोल्ड लिख लो, मशीनरी परचेज्ड है इसलिए यहाँ, ठीक है। एंट्री नंबर 3, वन मोर मशीनरी परचेज, कहाँ लिखेंगे? Where I will write purchase of machinery. Only 2 children know, Nandini and Nandika, Harmeen, Harman, Jaskaran. Okay, Jaskaran, you can answer. मैम डेबिट साइड पे नाम क्या कैश लिखेंगे? अकाउंट। कैश अकाउंट, वेरी गुड। So I will write कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लूंगी परचेज फॉर माय रेफरेंस और अमाउंट लिख दूंगी 8,000। क्लियर है बेटे? सारी एंट्रीज अब लिखते हैं। थर्ड फोर्थ एंट्री, मशीनरी डिस्कार्ड करती है। डिस्कार्ड करने का मतलब होता है जैसे समटाइम्स इट हैपेंस ना कि कोई पुरानी मशीन है, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, हम उसको कबाड़ में दे दिया, हमने उसको हमने कंडम कर दिया कि इट्स ऑफ नो यूज। आपके साथ भी होता होगा घर पे समटाइम्स, फॉर एग्जांपल यू हैव अ वेरी ओल्ड एज फ्रिज है आपके घर पे, काम नहीं कर रहा, करंट भी लगाता है, कोई पुराना कूलर पड़ा है, तो घर वाले कहते हैं इसको निकाल के नया लेके आए। तो व्हेनेवर वी आर पुरानी मशीन को निकाल के नई लेके आते हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिस्कार्डिंग ऑफ मशीनरी। तो मशीनरी इज गोइंग आउट, और जब उसको हमने कबाड़ी वाले को बेचा तो 14,000 वी गॉट, उसको स्क्रैप भी बोलते हैं। हमने मशीन को स्क्रैप में बेचा और 14,000 उसका अमाउंट जो है वो आ गया। सो व्हाट वी विल राइट हियर 14,000 रुपीज का जो हमारा मशीनरी है वो चला गया, बट बिकॉज दिस इज मशीनरी डिस्कार्डेड, इट इज अ टाइप ऑफ लॉस फॉर द बिजनेस, सो वी विल राइट इट ऑन द नेम ऑफ P&L अकाउंट। P&L होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब भी कभी लॉस होगा, जैसे आपको लिखा होगा कि मशीनरी डिस्कार्ड कर दी, मशीनरी डैमेज हो गई, लॉस्ट हो गई, या फिर स्क्रैप में चली गई, तो वी विल राइट P&L अकाउंट, ठीक है। एंड लास्ट वन इज डेप्रिसिएशन। अब अगर डेप्रिसिएशन बेटे हो जाती है, डेप्रिसिएशन अगेन मींस दैट द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज डिक्रीजिंग। In case the machinery's value is decreasing, we will write it as, basically again it will go to depreciation account, तो हम ये लिख देंगे by depreciation account। अच्छा, यहाँ पे अपने रेफरेंस के लिए डिस्कार्डेड भी लिख देना, मशीनरी डिस्कार्ड हुई है तो वहां फॉर योर रेफरेंस यू कैन राइट, बिकॉज इट इज अ टी शेप अकाउंट। अगर आप पूरा मशीनरी डिस्कार्डेड भी लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आना तो इधर ही है। Depreciation is for 1,000 rupees, so we will write here, क्योंकि depreciation से भी मशीनरी की वैल्यू कम होती है, डिक्रीज होती है, तो इस तरफ डिक्रीज आता है, इस तरफ इंक्रीज आता है। So that is all for this question. That is all. Now how to finish this question? अब इसको देखिए आगे, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, please watch it carefully how to do it. Now, when all the entries are being posted to one account, now this is called as posting. Posting आपने कर ली, the other step is called as totaling of the account. तो अब मैंने क्या करना है, टोटलिंग करनी है दोनों साइड्स में। यहाँ पे लिख देती हूँ टोटल, इस साइड भी आ रिटन टोटल। So
So totaling of both sides I will do. Total of this side is 48,000. Sum total of this side will be 25,000. So what is the rule that both sides of an account should tally? यहाँ पे है 48,000, यहाँ पे 25,000. How we can match the two sides of an account? We can write the larger amount on the both sides. यहाँ पे जो bigger amount है 48,000 बड़ी amount है, दूसरी साइड 25,000 है, वो छोटी amount है, वो नहीं लिखनी. तो in total I will write here 48,000. जो बड़ा अमाउंट है दोनों साइड लिख दिया. दिस इज कॉल्ड एज टोटलिंग. टोटलिंग होगी. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कास्टिंग. मतलब कास्टिंग का मतलब होता है बैलेंसिंग फिगर निकालना. अब दिस साइड्स टोटल इज नॉट 48,000 बट आई वांट इट टू बी 48,000. सो व्हाटएवर इज द बैलेंसिंग फिगर आई विल राइट हियर. कितने कम पड़ रहे हैं पैसे दैट आई विल राइट. प्लीज डू इट फॉर मी. 48,000 में से 25,000 डिडक्ट करके बताइए हाउ मच विल बी द अमाउंट. यस ओके ओनली 1 2 इतना टाइम. ये तो ओरली हो जाना चाहिए आपका. यादवी 23,000. 23,000. देखो इतना टाइम लगा रहे हो आप. ये तो इतना इजी है. तो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट 23,000 here. नाउ यू विल आस्क मैम 23,000 लिखा, नाम किसका लिखिए. दिस इज द बैलेंसिंग फिगर ऑफ द क्वेश्चन. दिस इज द बैलेंस ऑफ द मशीनरी अकाउंट. हमारे पास पहले 40,000 की मशीनरी आई, फिर 8,000. टोटल मेरे पास मशीनरी आई 48,000 की. 48,000 की मशीनरी में से 10,000 की मैंने सेल कर दी, 14,000 की कंडम कर दी, 1,000 की डेप्रिसिएशन लगी. आज के डेट में कितनी मशीनरी बची है मेरे पास? दिस इज द बैलेंस ऑफ मशीनरी दैट आई हैव विद मी 23,000. सो आई विल राइट इट ऑन द नेम ऑफ बाय बैलेंस कैरिड आउट. CD. By balance CD I will write. CD means carried down balance. और ब्रैकेट में I can write BF. ठीक है जी. Now this BF stands for balancing figure. This figure is a balancing figure. ये कहाँ से आई है? इसको बैलेंस करने के टाइम पे we have posted it here. ठीक है बेटे. So this is the balancing figure. This process is called as casting of an account. Then first we did posting of an account. पहले हमने फॉर्मेट बनाया, then posting in the account, then totaling in the account, and now balancing of the account. Balancing of the account is also called as casting of the account. Then am I clear to all of you? Say something yes or no. You can show your yeah. That's great. Thank you very much. Similarly, question number 8 you can see on your book. Again a question of open a T-shaped cash account and transactions are being given. So I believe you all have noted it down. Cash account will be exactly same to this. इसको रब कर देती हूँ. If you have not, I believe you have it. The same format will be there. There will be no difference. The only difference will be of the items which we are going to get. So what we will do? Heading में हम लिख देंगे कैश अकाउंट और अंदर जब हमने लिख दी इसकी आइटम्स we will look in the question. So sorry, all accounts it will be same. Buy will be same on all accounts. So let's start. Entry number 1, started business with cash. Rule याद रखना, debit what comes in, जो आएगा इधर. Cash coming in here, cash going out here. Cash is coming in 40,000. 40,000 का cash आया है from where? From capital. Businessman is bringing amount of 40,000 to the form of capital. Entry number 2, purchase goods. Goods purchase करेगा, cash will go out. We will write buy purchases. How much? Purchases of goods is 20,000. So 20,000 will go out. Like this, sold goods. Cash will come in. Always remember this side what comes in, this side what goes out. So the same rule of asset account and real account is going on here also. Entry number 4, paid rent. By rent this side in
Paid salaries, one salary is salary of course cash is going out. Drew for personal use by drawing cash will go out. So like this, you can post it. अपलोड कर लीजिए, amount लिखिए, totaling करिए, balancing figure निकालिए, and the question will be over. Clear है? All the items like particular